Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on LCM and HCF. And today is part 8 of this chapter. So let's start. Okay. So our today what we will do, we have completed HCF, two type of HCF. Okay. One is when the remainder, a different remainder, when the remainder is different. Okay. When the remainder is different. Okay, different remainder, we have done different remainder question. Okay, and we have also done same remainder and not given, same remainder and not given. If remainder is not given in the question, we have done this type of question also. We can do this type of question by difference method. Okay, different remainder में what we do, we used to subtract the remainder, and after that we used to find out LCM either with difference method or with division method. Okay, now our one type of question is left, that is same remainder but given in the question. Okay, given in the question. This we have done, this is left. Okay, today we will do same remainder with given question. Okay, so our first question is question number is find out the greatest number. Find out the greatest number when divides by 99, 47, 147 or 1011 and leaves remainder and leaves the remainder and leaves the remainder 3 in each condition. In each condition. What does the question actually says? It says that find out the greatest number. I have already taught you that greatest number, whenever in the question there is greatest number, we have to find out the highest common factor, that is HCF. Okay, when divided by 99, 147 and 1011, we are dividing with this number and the leaves the remainder. इन तीनों से डिवाइड करने के बाद वो जो नंबर होगा वो आपका हर बार आपको 3 क्या देगा, रिमाइंडर देगा. तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है व्हाट इज द HCF. ओके, व्हाट इज द HCF. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, वी कैन डू इजीली. हम लोग को रिमाइंडर पता है, माइनस कर देंगे 3. जब नहीं पता होता है तब मुश्किल होता है, वी हैव टू चेक आउट. ओके, लेकिन जब मालूम है तब हमें कोई मुश्किल नहीं है, चाहे रिमाइंडर डिफरेंट हो चाहे रिमाइंडर आपका सेम हो. ओके, माइनस करेंगे तो ये 96 होगा. यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं. आफ्टर दैट 147 से जब माइनस करेंगे 3 को तो कितना होगा, 144. एंड 111 से जब माइनस करेंगे 3 को तो बचेगा 008. 1008. नाउ दिस इज द नंबर. अब आपको इसका क्या चाहिए, HCF चाहिए. 96, 144 और 1008. ओके, 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा 8. अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4. Again it is divisible by 2, 12 से. Again it is divisible by 2 and 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12. Again 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6. Again 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 and 3 21. ओके, अगेन हम नहीं कर सकते क्योंकि 3 से ये डिविजिबल है, 3 से ये डिविजिबल है, बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है. तो हमें फाइनली ये ही मिलता है नंबर्स जो कि मेरा HCF होने वाला है. तो HCF इज इक्वल टू 2 into 2 into
इंटू थ्री, इट मीन्स 2 के पावर में 4 इंटू थ्री, दैट मीन्स क्या है 16 इंटू थ्री, 6 3 18, कैरी 1 3 1 4, यानी कि 48 क्या आ रहा है आपका HCF आ रहा है एंड 40 इज योर आंसर। ओके, 48 ही आपका आंसर होगा क्योंकि यही आपका HCF आया। ओके, सो ग्रेटेस्ट नंबर जो बोला गया है वो आपका 48 ही है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं जो कि सिंपल ही है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे। ओके, इसी मेथड के ऊपर मतलब आपके जो तीनों जो फॉर्मेट है HCF फाइंड आउट करने के, HCF निकालने के कंडीशंस जो है उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, क्या रहेंगे क्वेश्चन बताते हैं हम। एक मिल्कमैन के पास, क्वेश्चन इज दैट अ मिल्कमैन has 3 container। एक मिल्कमैन के पास 3 कंटेनर है, ठीक है। तीनों कंटेनर में एक में आपका ये कंटेनर जिसमें आपका प्योर मिल्क है, ठीक है, इसमें क्या है प्योर मिल्क है। एक दूसरा कंटेनर है जिसमें आपका इम्प्योर मिल्क है, एक आपका प्योर मिल्क है, ये आपका इम्प्योर मिल्क है। एंड वन इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, ये क्या है मिक्सचर है वाटर एंड मिल्क। एंड एवरी कंटेनर कंटेन different amount of water, different amount of water। The pure container contain 112 liter, pure container contain 112 liter। Okay, impure contain 84 liter of milk, 84 liter of milk, and mixture contain 184 liter of mixture। Okay, so you have to find out what is the maximum capacity, what is the maximum capacity of the containers when we have to measure all three, when we have to measure all three। जब तीनों कंटेनर्स को मेजर करना होगा तो हमें मैक्सिमम कंटेनर क्या होगा जिससे ये तीनों नंबर्स आपके इजीली मेजर हो सकते हैं। आप सोच रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी पूछा है, मैक्सिमम क्या होता है दैट मीन्स ग्रेटेस्ट। ओके, हम ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे पूछा गया है तो हमको मैक्सिमम क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम का मतलब ग्रेटेस्ट है कहीं ना कहीं, और हम लोग को यहाँ पे HCF ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, of the container when we have to measure all three, और वो ऐसा कंटेनर मुझे मतलब इतने ही मतलब कि एक ऐसा कैपेसिटी चाहिए, एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिससे मुझे all three मेजर हो सके। तो तीनों उसी से मेजर हो सकता है जो तीनों का HCF बनेगा। ओके, देन इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज हमको HCF निकालना है, समझ में आ गया। 112, 84, 184, इसका क्या लेंगे हम HCF लेते हैं। 2 से 2 6 2 5 10, 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 9 18, 2 9 18 एंड 2 2 अगेन 4। अगेन ये 2 से जा सकता है, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, 2 4 8, 2 6 12। अगेन 2 से 1 4 सॉरी 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये आपका 2 से नहीं आपका होता है, तो ये आपका 3 से भी नहीं जाने वाला है क्योंकि 3 से आपका 46 नहीं जा सकता है। तो आई थिंक यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि यही तक आपका ये आपका HCF आने वाला है, क्योंकि इसके बाद ये आपका 7 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, बट 7 से ये नहीं जाएगा, 4 से ये नहीं जाएगा,
ओके, तो इट्स मीन आपका इतना ही रहेगा, इतना ही रहने वाला। यानी कि HCF अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 into 2 दैट इज 4, यानी कि मुझे 4 लीटर का कंटेनर चाहिए। वी वांट 4 लीटर कंटेनर, वी वांट 4 लीटर कंटेनर, यानी कि 4 लीटर के मुझे क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सेम क्वेश्चन है एक्चुअली, ए मिल्कमैन हैज 3 कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ठीक है, इसको सॉल्यूशन को सिर्फ रफ करते हैं। द क्वेश्चन इज अ मिल्कमैन हैज 3 कंटेनर, दैट इज फर्स्ट वन इज ऑफ 340 लीटर, 340 लीटर। Second one is of 340 liter, first one है 304 and 140, 304 and 140, okay, and third container is 570, this is 1140 and 570 liter। ये क्या है, 3 कंटेनर। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर व्हेन वी हैव टू मेजर ऑल 3, जब हमें तीनों को क्या करना होगा, मेजर करना होगा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, सिमिलर है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द HCF। तो ये 304 हो गया, ये 1140 है एंड ये 570 है। ओके, 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 0, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। ओके, अगेन ये 5 से चला जाएगा, बट ये आपका 5 से नहीं जाएगा, तो ये किससे आपका जा सकता है, एक है आपका 57 into 10 है, 2 से जा सकता है 50, अब हमको नहीं लगा किसी से भी आपका ये कैंसिल आउट होगा। ओके, ये आई थिंक इतना ही रहेगा, या फिर आप इसको एक्चुअली 19 से शायद चला था, 19 से चला जाएगा, 19 4 32, यानी कि 194, 19 से भी ये शायद 19 से चला था, 2 2 1 जा 2 दैट टाइम 2 2 जा 4, 19 से चला 9 8 जा शायद, हाँ 22 कैरी 7 8 9 10, हाँ 8 जा चला जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 57 3 बार में आता है, तो ये आपका 30 टाइम्स जाएगा, और ये 19 1 जा 19, 19 1 जा 19, ओके, 8 और 9 95 आ रहा है, जो कि आपके 5 टाइम्स यानी 15 टाइम्स में चला जाएगा। तो आपके ये नंबर्स आ रहे हैं, ओके, यानी कि ये आपका 19 से ही कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये HCF यहाँ पे इतना ही रहने वाला, दैट इज 2 into 19, दैट मीन्स 38, 38 is the answer, that means 38 liter of container required, container required, 38 लीटर का कंटेनर आपको इन तीनों को मेजर करने के लिए चाहिए, ताकि इन तीनों को मेजर किया जा सके, 38 लीटर में किया जा सकता है। कि प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो आपके ड्रिंक का क्वेश्चन था ना, बेल्स के क्वेश्चन जो थे, जो LCM में करवाए थे, वही आपके यहाँ पे भी है। क्वेश्चन क्या है,
there are 3 bells which rang at the interval of 18 second, 24 second and 30 second। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास 3 bells है which rang 18 सेकेंड पे एक बजती है, दूसरा आपका 24 सेकेंड पे बजती है एंड थर्ड वन इज 30 सेकेंड पे रैंग होती है। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट दैट at 9 p.m. at 9 a.m. all 3 rang together So how many times bells will rang together till 1 p.m. मतलब कि एक बार तीनों बेल एक साथ 9 बजे बज गई है, अब वो क्या हो रही है, बार बार वो बज रही है। मतलब ये तो आपकी 18 सेकेंड, 24 सेकेंड और 30 सेकेंड के इंटरवल में बज रही है हमेशा। तो पूछा जा रहा है कि 1 बजे तक, यानी कि दोपहर के 1 बजे तक 1 PM तक आपके ये बेल्स कितनी बार साथ में बजेगी। ठीक है, ये बेल्स कितनी बार साथ में बजेंगी, यही क्वेश्चन है आपका। ओके, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं ना, जब आपको पूछा जाता है कि इतने बजे तक आपको कितने बेल्स बजेंगे, कितने बार रिंग्स होंगे, तो आपको उसके लिए HCF के क्वेश्चन कराना पड़ता है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस किस में बनेंगे, ये LCM में बनेगा। ठीक है, LCM में क्वेश्चन बनेगा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ LCM। यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं दिया गया है, दैट इज ग्रेटेस्ट है कि स्मॉलेस्ट है, कुछ भी नहीं दिया गया है। और जब भी बेल वाला क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे LCM का क्वेश्चन ही लेना। ओके, आई थॉट इट वाज द LCM क्वेश्चन बिकॉज आई थॉट कि we are going with through HCF now, that's why। ओके, सो ये LCM का क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियसली भी हम लोग क्या किए थे, बेल वाले क्वेश्चंस को कर चुके थे। तो LCM के क्वेश्चंस क्या है, नॉर्मली 18 है, 24 है एंड 30 है। आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करो 2 से, 2 9 से 18, 2 12 का 24, 2 15 का 30। अगेन आप 3 से डिवाइड है, 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 5 का 15। अब तो ये किसी से डिवाइडेड नहीं है, तो एज इट इज नंबर्स को लिख देना है। 5 से करेंगे 1 4 5 एंड अगेन 4 से 1 1 1। दैट मीन्स LCM कितने आ जाएगा, 2 into 4 into 3 into 3 into 5। दैट मीन्स 2, और ये 4 2 के पावर में 2 है, यानी कि 2 के पावर में 3 into 3 का स्क्वायर into 5 के पावर में 1, यानी कि ये 8 है, ये 9 है into 5। दैट मीन्स 9 8 का 72 होता है, 5 2 का 10 का 0 कैरी 1 7 5 का 35 136, यानी कि 36 आपका क्या आ रहा है LCM। तो 36 सेकेंड क्या है ना, कि मतलब ये तीनों बेल्स 360 सेकेंड के इंटरवल में एक साथ बजने वाली है। तो मेरे पास यहाँ पे कितने आवर्स है, 4 आवर्स है, क्योंकि 9 AM पे एक बार बज रही है और 9 AM के बाद मतलब कि बजने वाली है आपके 30 सेकेंड के इंटरवल में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अगर हम 360 को मिनट में कन्वर्ट कर दें, मतलब ये 360 सेकेंड बाद बज रही है, तो ये आपका अगर इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि आपका 360 को मिनट में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 6 यानी कि 6 मिनट, मतलब 6 मिनट बाद क्या हो रही है, ये आपके जो बेल्स है वो बज रही है 6 मिनट बाद एक साथ बज रही है। तो यहाँ पे टोटल 4 आवर्स आपके पास दिए हैं। 4 आवर्स को 4 आवर्स है, 4 आवर्स किस चीज़ का है, आपके पास 9 AM से लेकर के 1 PM तक का टाइम है, जो कि 4 आवर्स होता है। 4 को
मिनट में कन्वर्ट हो जाए। आफ्टर दैट ये 6 मिनट पे बार बार बज रही है तो हम 6 को डिवाइड कर देंगे, तो 6 से ये आपका कटेगा तो 10 आएगा, यानी कि 40 टाइम्स। ठीक है, ये 40 टाइम्स कब है? जब आपका जो 9 बजे के बाद से जो बज रहा है ना, 9 बजे से बाद से जो आपका 1 बजे तक बज रहा है तो 14 टाइम्स बजेगा। लेकिन एग्जैक्टली 9 बजे भी तो एक बार बजा है ना बेल, 9 बजे एग्जैक्टली भी तो एक बार बजा है। 9 बजे के बाद जितने आपके बेल से 1 बजे तक की वो आपके 40 टाइम्स है, लेकिन एग्जैक्टली 9 बजे भी एक बार बेल बजा है तीनों एक साथ, उस चीज को इंक्लूड नहीं किए हैं। तो उस चीज को अगर इंक्लूड करेंगे तो वो 1 टाइम है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 41 टाइम्स हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 41 टाइम्स। सो 41 टाइम्स इज योर आंसर। ओके, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है? अब आपके पास मिक्सचर क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, एक्चुअली एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस तो कर चुके, कंटेनर वाले क्वेश्चंस मिल्क वाला भी कर चुके हैं, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ये आपका मिक्सचर है एलसीएम एंड एचसीएफ के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज there is a circular road. There is a circular road where 3 persons are running. Where 3 persons are running. 3 लोग क्या कर रहे हैं? इस सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ ऑल रेस्पेक्टिवली, स्पीड 3 persons are running, that is A, B, C, यानी कि 3 पर्सन आपके A, B and C है, ठीक है। Their speed are respectively, क्या है स्पीड आपके? स्पीड है आपके 12, 20 and 24, respectively 12 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 12, 20 and 24, sorry, this is 20 and this one is 24, this is 20 and this one is 24, इस स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है। They started together in the same direction. They started together at same direction at what time they will meet? After what time they will meet? कितने समय बाद मिलेंगे? तो क्वेश्चन एक्चुअली है क्या, बोला जा रहा है एक सर्कुलर रोड है, ठीक है। आप यहाँ पे आपको बना के दिखा रहे हैं, ये आपका सर्कुलर रोड है। आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी सर्कुलर रोड होता है या सर्कल आपके पास फिगर है या शेप है, तो उसका जो सर्कमफेरेंस होता है, सर्कुलर का सर्कमफेरेंस हमेशा, सर्कमफेरेंस मतलब ये आपके जो गोल पार्ट है ना, इस चारों, और अगर कोई दौड़ रहा है तो उसका सर्कमफेरेंस नहीं, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? आपका होता है 2πr। ये आपका क्या है? एक सर्कल का सर्कमफेरेंस है, जो आपका पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो कौन कौन से लोग? 3 लोग दौड़ रहे, दैट इज A, B एंड C। उसके स्पीड दिए हुए हैं, मतलब कि A आपका 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, B आपका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, C आपका 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। They started together at the same direction. अगर मान लो कि कोई अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना, तो ये लोग यहीं से स्टार्ट किए हैं और इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब तीनों ही आपके सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट कर दिए हैं।
बट तीनों की ही स्पीड क्या है, डिफरेंट है। दे स्टार्टेड टुगेदर इन सेम डायरेक्शन आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, तो कितने समय बाद तीनों आपस में मिलेंगे, तीनों आपस में मिलेंगे। तो एक चीज तो कंफर्म है, एक चक्कर तो 24 जब पूरा करेगा तब तक 20 वाला आधा ही रहने वाला है, 18 वाला उससे भी पीछे रहने वाला, 12 वाला उससे भी पीछे रहने वाला। इसका मतलब पहला चक्कर जब कंप्लीट हो जाएगा, पहला चक्कर जब कंप्लीट हो जाएगा तब तक तो कोई नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तीनों की ही स्पीड अलग अलग है और तीनों आपकी जब यहाँ तक पहुंचेंगे उसके बाद फिर दौड़ना स्टार्ट कर दौड़ रहे हैं ना, तो ये तब वो पॉसिबल है कि आपका 24 वाले पीछे से 12 वाले को और 20 वाले को कैच करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये साफ है कि एक चक्कर पे तो तीनों में से कोई मेट नहीं करने वाला है। इसका मतलब हमें इस तरह के क्वेश्चन से क्या करना होगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है कि तीनों कहाँ मिलेंगे, तीनों का वैसा बजेगा वैसा है, तो हमेशा आपको यहाँ पे LCM लेना है, ठीक है, हमेशा आपको यहाँ पे LCM ही लेना है। तो आप LCM लेने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले अब हमको क्या पता है, LCM लेते सबसे पहले LCM लेंगे तो हम 12 का, 20 का एंड 24 का लेंगे। 2 से डिवाइड, 2 6 are 12, 2 10 are 20, 2 12 are 22, again 2 3 are 6, 2 5 are 10, 2 6 are 12, again 3 1 are 3, 3 5 are 3 5, 3 2 are 6, again 2 1 5 1, again 5 1 1 1, that means मेरा LCM क्या आ रहा is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5, तीन आपके पास 2 है, एक 5 और एक 3, तो 2 के पावर में 3 into 3 into 5, that means ये 8 है, ये 15 हो जाएगा, 8 5 का 40 का 0 कैरी 4 8 9 10 11 12, यानी कि 120 आ रहा है। तीनों की जो स्पीड है उसका LCM मुझे कहना कितना मिल रहा है, 120 मिल रहा है। नाउ व्हाट वी नो दैट तीनों पूछ रहा है कब मिलेगा, इसका मतलब 120 की स्पीड से जब दौड़ रहा, अच्छा इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ ना, आपके पास डिस्टेंस नहीं है, ओके आपके पास डिस्टेंस नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे लेंथ आपका दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लेंथ आपका 3 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, लेंथ वही सोच रहे थे, तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, किसका लेंथ, सॉरी सर्कल का सर्कमफेरेंस एक्चुअली दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ नहीं हम बोल सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, दैट इज 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आपके दिए हुए हैं, ओके फाइन। आपको अगर यहाँ पे LCM निकालना है तो इसका एक चीज तो आप समझ रहे हो, दैट इज कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस, जो स्पीड होता है ना वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, आपके पास स्पीड भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, यही होगा ना, टाइम निकालना है तो, क्योंकि डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, स्पीड आपके पास है, क्योंकि तीनों का ही अलग अलग स्पीड है, लेकिन आपके पास यहाँ पर टाइम दिया हुआ नहीं, यानी कि तीनों जो चक्कर पूरा कर रहे हैं, तीनों जो चक्कर पूरा कर रहे हैं वो आपका मेन है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस टाइम पे वो मिलेंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए अगर हम A की बात करते हैं तो A का जो टाइम है AT अगर हम लिखते हैं, A का टाइम क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस बाई स्पीड है, डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, स्पीड कितना है इसका 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर हम B की बात करते हैं, B की टाइमिंग की बात करते हैं, तो B का टाइमिंग कितना है यहाँ पे, B ये भी आपका 3 किलोमीटर दौड़ रहा है, कितने की स्पीड में, 20 की स्पीड में दौड़ रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम C की बात करते हैं, C के टाइमिंग की, तो वो भी 3 किलोमीटर दौड़ रहा है, कितने की स्पीड में, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में दौड़ रहा है, ठीक है, 3/24 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को रफ करते हैं थोड़ा, ठीक है। पूछा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, यही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे तीनों की टाइमिंग दी हुई है,
मतलब कि ए की टाइमिंग है यहाँ पे 3/12, बी की टाइमिंग है यहाँ पे 3/20 एंड सी की टाइमिंग है 3/22। ये तीनों ही क्या है टाइमिंग है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका एलसीएम चाहिए, क्योंकि मुझे ये नहीं पूछा है कि कितने दूर बाद मिलेगी, ये पूछा है कितने टाइम बाद मिलेगी, इसलिए मुझे क्या चाहिए टाइम का एलसीएम। अब टाइम मेरा फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है, इस वजह से ये मेरा फ्रैक्शनल ही बनने वाला है, यानी कि ये फ्रैक्शनल क्वेश्चन हो जा रहा है एलसीएम का। तो हम तो ये सीखे थे डेसिमल और फ्रैक्शन का किस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। तो ऊपर वाले का क्या लेते हैं हम एलसीएम लेते हैं, दैट इज 333, और नीचे वाले का क्या लेते हैं हम एचसीएफ लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है मिक्सचर ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन है ना, इस वजह से यहाँ पे मिक्स किया हुआ है। एलसीएम अगर 333 का निकालते हैं तो मुझे पता है कि ये मुझे 3 ही मिलने वाला है, ओके। लेकिन 12, 20 और 24 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहे 12, 20 एंड 24, इसका मुझे क्या चाहिए एचसीएफ चाहिए। तो 2 से अगर हम करें 2 6 जा 12, 2 10 जा 20 और ये 12, अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब ये आपका नहीं आपका कटने वाला है, क्योंकि 5 आपका 3 से नहीं कटेगा, 3 आपका 5 से नहीं कटेगा, 6 आपका 5 से नहीं कटेगा। दैट मीन्स मेरा एचसीएफ यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4। क्या हो गया 4, ओके। ये आपका क्या हो गया 3/4। ये कितना है, ये आपका आवर में, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था स्पीड आपके आवर्स में थे, आपका ऊपर भी देखिए किलोमीटर में है, दैट मीन्स किलोमीटर पर आवर में आपके स्पीड्स है, तो मतलब आंसर किस में निकल रहा है मेरा आवर में निकल रहा है। 3/4 क्या है आवर है। अगर हम इसको मिनट में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये आपका आंसर बता सकते हो, लेकिन आप इसको प्रॉपर्ली लिखोगे तो आप इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 3 जा 45, 45 क्या हो गया मिनट में आ गया। इसका मतलब जो तीनों आपके पर्सन है ए बी एंड सी वो 45 मिनट्स बाद मिलेंगे, ओके। वी कैन राइट हियर they will meet after 45 seconds. They will meet after 45 minutes. They will meet after 45 minutes और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ओके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, लंबा अच्छा सा था, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, एचसीएफ एलसीएम दोनों ही चीजें, ऊपर से स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला भी सीखने को मिला, ओके। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेरे पास यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 18, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे मेरे पास एचसीएफ दिया हुआ है दैट इज 18, एलसीएम दिया हुआ है दैट इज एचसीएफ दिया है 18, एलसीएम दिया है 3780, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है एंड आपको सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना, ओके। फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, आपको सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर है 540, फर्स्ट नंबर है 540, ओके। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। तो आप सेकेंड नंबर कैसे निकाल, हमको पता है कि फर्स्ट नंबर जो होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड नंबर के साथ, तो वो मुझे क्या देता है आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ देता है। ये फॉर्मूला तो हम पहले से ही जानते हैं, तो फर्स्ट की जगह पे हम फर्स्ट को रखेंगे दैट इज 540 इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम कितना है 3780 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना दिया हुआ दैट इज 80, यानी कि सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, दैट मीन्स सेकेंड नंबर जो होगा वो आपका 3780 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 540, 0 से 0 कट गया, ओके। 9 5 से 45, 9 6 54 और 9 2 18 हो गया,
से काटेंगे 3 टाइम्स, 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, यानी कि 126। यानी कि जो सेकेंड नंबर है वो कितना है मेरे पास, यहाँ पे आ रहा 126 एंड दिस इज आवर आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ least number when divided by 4 6 8 12 16, you have to find out least number. What is the least number? Is the least number when divided by 4 6 8 12 16, 4 6 8 12 and 16, least remainder, leaves remainder 2 in each case। तो आपको बताना है यहाँ पे लीस्ट नंबर क्या है, वो आपका रिमाइंडर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है ईच केस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम नॉर्मली एचसीएफ में किए हैं, एचसीएफ में करके देखते हैं यहाँ पे किस तरह। तो एक्चुअली लीस्ट नंबर क्वेश्चन ने पूछा है ना, ग्रेटेस्ट नंबर तो नहीं पूछा है। तो जब भी लीस्ट नंबर पूछा जाएगा दैट मींस ये क्वेश्चन किसका है, एलसीएफ का है। हम पहले ही बता चुके, ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तो एचसीएफ, लीस्ट नंबर पूछेगा तो एलसीएम। तो इन सब का हम क्या लेंगे, इन सब का हम लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 2 6 the 12, 2 8 the 16। अगेन 2 से 1 3, 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, ओके। अगेन 2 से 1 3 1 3 2, अगेन 3 से 1 1 1 1 2, ओके। अगेन 2 से 1 1 1 1। दैट मीन्स मेरा एलसीएम कितना आ रहा, 1 2 3 4। 4 आपकी क्या है, 2 है, 4 इनटू आपकी क्या है, एक आपका 3 है। दैट मीन्स 2 के पावर में 4 इनटू 3 के पावर में 1, यानी ये 16 इनटू 3 है। 16 3 जा 48 होता है, ठीक है। 16 3 जा 48। दैट मीन्स 48 क्या है, एलसीएम है आपका। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रिमाइंडर क्या कर रहा है, 2 लीव कर रहा है। जब भी हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो जो भी रिमाइंडर रहता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब भी हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो जब भी मेरा जो रिमाइंडर रहता है ना उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। दैट मीन्स वो आपका जो नंबर है, जो लीस्ट नंबर है वो आपका कितना 50 है। तो 50 इज योर आंसर, क्योंकि जो रिमाइंडर रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे, ओके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। तो ये क्या हो जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो, जैसे कि 50 को आप डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो पता है 4 1 जा 4 होता है, 10 आएगा, 4 2 जा 8 करेंगे तो आपका नीचे रिमाइंडर 2 बच रहा है। उसी तरह से 6 क्या करोगे तो 6 1 जा 48 होता है तो आपको 2 बच रहा है। 8 से करोगे तो 8 6 जा 48 होता है, फिर 2 बच रहा है। 12 से करोगे तो आपका 12 4 जा 48 होता है, फिर 2 बच रहा है। 16 से करोगे तो 63 जा 48 होता है, अगेन 2 बच रहा है। यानी कि 50 में हर बार मुझे क्या मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है, ओके। सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ओके। ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। एलसीएम एंड एचसीएफ के हमने कंबाइंड क्वेश्चंस भी कर लिए कुछ, ओके। सो फ्रेंड्स, आज आपका लास्ट क्लास भी था एचसीएम एंड एचसीएफ का, क्योंकि इसके बाद ऐसा कुछ है नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर कर लिए जो कि एचसीएफ एंड एलसीएम में बनते हैं। इंडिविजुअली भी कवर किए हैं एंड आपके कंबाइन में भी कवर किए, ओके। सो प्लीज like this video and subscribe our channel that is always for us. Thank you so much guys. Goodbye and